people run behind getting the funding, जबकि the real objective should be to earn profits. सिर्फ एक क्लाइंट है 20,000 पर मंथ पे करता है तो मेरे एक्सपेंसेस 15,000 के ऊपर नहीं जाने चाहिए. Biggest problem or competitor is not the same level of different agency that is working, but in many cases the competitor is young people, 2 to 3 people, क्योंकि शुरू एनर्जी रहती है ना, उसका कोई कंपटीशन नहीं. Hi, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, then marketer and founder of Internet Moguls. What up, Internet Moguls? Okay, so ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to another episode of the Internet Moguls, the agency series where we call agency experts from all over the world and ask them what is it that it takes to run an agency. So today's special guest is Manish. Manish, you've been running an agency for how many years now? Since 9 years, Abhijit, now. And pleasure. तो मनीष, हमारा एक फॉर्मेट है हम जिसमें शुरू करते हैं. तो मैं हमेशा कहता हूँ the shortest distance between 2 human hearts is always a good story. So I'm going to tell you a 10-second story of mine और आप उसी फॉर्मेट को कॉपी करके अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करें. ठीक है, I'll try. So my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Moguls. Right. I'm Manish Vaswani, father of a 2-year cute kid, running an agency which helps hotels to become the best, to have the best digital presence all over the net. Awesome. 2 years old. Wow, what a blessing. Must be so much fun. घर जाने का दिल करता होगा रोज शाम को. 2 साल से life completely changed, 360 degree. That's what they say. शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, but it's after the children that the life changes. I witnessed it. शादी के बाद जितना होना था उतनी नहीं, but after becoming a father, I witnessed 360 degree change, no doubt. A lot of people all over the world want to open digital marketing agency. बाहर से बड़ा glamorous लगता है. Correct. भाई लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाएंगे और थोड़ा सा प्रोफाइल बनेगा, but behind the scenes एक operations बहुत सारी चीजें होती हैं and इतना. So first I wanted to ask you that what do you think are the sort of why should person get into this kind of a business? What should be the do you need some kind of experience? Can you get without experience? And जब आप अंदर कोई अंदर घुस रहा है तो उसको आप 2-3 क्या एडवाइस दोगे कि ये चीज एक्सपेक्ट करिए जब आप अंदर जाएंगे? Okay, so I think these are 2 different questions. First, जो आपने पूछा क्या चीज होनी चाहिए motivation to start the agency business. Right. I guess this field is majorly for people जिनमें ना creativity का थोड़ा कीड़ा होता है. People who want to do something different and people who are more fascinated towards social media. So I keep saying to my team also, and because we work only into hotels, so even to general managers whom I meet, that you definitely will find a person in your morning meeting, in your board meeting. 10 लोगों HODs की मीटिंग चल रही है, 10 टीम मेंबर्स की, तो एक जना ऐसा होगा बाय डिफॉल्ट हु इज वेरी मच एडिक्टेड टू दी स्मार्टफोन. आप मीटिंग ले रहे हो और वो नीचे फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहा है. एक ऐसा मीटिंग में होता है. आप उसको ऑफिशियली आपके यहाँ से पिक्चर्स लेने की, कंटेंट जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, हु कुड सेंड टू अस और व्हाटएवर योर एजेंसी इज. एंड सिमिलरली इफ एनी कैंडिडेट इज हैविंग दैट काइंड ऑफ थिंग, उसको अगर वो इंटरेस्ट को बिजनेस बनाना चाहे, देन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. और सेकंड, किस तरह से कर सकते हैं, सो this has no different answer than what any business requires. Lot of determination, patience and lot of passion to sustain. And I had a mentor, Abhijit, in initial years of my career, जिन्होंने एक बात बोली थी जो मुझे हमेशा याद रहती है कि 1000 days सस्टेन करना आपके लिए बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज है अप्रोक्सीमेटली. अगर आपने शुरू के 3 साल किसी तरह से सस्टेन कर लिया, कैश फ्लो मैनेज करना है, लोगों को मैनेज करना जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, अगर 1000 दिन आपने गाड़ी चला ली तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप लाइफ लॉन्ग चला लेंगे. यू विल बी एबल टू. सो दैट इज. अच्छा, इसमें ना मनीष आपने बहुत अच्छी बात बोली. तो 1000 दिन में 2 चीजें चाहिए होती है. एक तो होता है शुरू में 99% लोग शायद 1000 दिन का तो कोई सोचते ही नहीं है. जोश होता है, टीका लगाया, माँ बाप का आशीर्वाद दिया, हमने ऑफिस खोल लिया जी. करेक्ट. और हम 1-2 क्लाइंट ले देंगे, हम 3-4 यंग लड़के हैं. बट ऐसा नहीं होता. डोंट यू थिंक थोड़ी प्लानिंग होनी चाहिए? जैसे आपने कहा 1000 दिन का अगर सोच रहे हो तो थोड़ी प्लानिंग, थोड़े कैश फ्लो, पहला क्लाइंट कैसा आएगा, या शायद 2 को-फाउंडर में से एक आदमी नौकरी करके रख रहा है, वो नौकरी से पैसेदार है. हाउ डू यू थिंक 3 साल की जो आपने 1000 दिन बोला, इसकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? तो मुझे लगता है अभिजीत, आई हैव अ लिटिल डिफरेंट थॉट बिकॉज मेरी स्टोरी अपोजिट रही थी. जब मैंने स्टार्ट की, I did 3 businesses. First business was a hostel chain that I started, a branded girls hostel chain I wanted. जैसे
वो फ्रेंचाइजी ले लेते हैं बिग ग्लोबल चेन्स, वैसे ही क्या हॉस्टल की फ्रेंचाइजी या उसको प्रॉपर्ली कोई मैनेज कर सकता है? बिकॉज हॉस्टल की, यू मस्ट आल्सो हैव हर्ड, बहुत कंप्लेंट्स आती है, इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा और उनका हॉस्टल इज नॉट गुड, सो शुड वी मैनेज दैट? वो कंसेप्ट था. आई टुक अ कपल ऑफ लैक्स फ्रॉम दैट कुड नॉट वर्कड आउट. Second business was a discount card kind of thing, a very basic normal thing that I started, many people do. That second business gradually turned up to become the advertising agency, because when we did that discount card, we met a lot of outliers. Not even we, I started alone. Met a lot of outliers who wanted कि इस type की designs कुछ बन सकती है, social media हो सकता है, and lot of things which gradually I started doing. After a particular time, when 5 to 10 clients were there on board, and we were doing multiple services for them, not just one, then gradually it established to be a digital agency. It was not planned. अच्छा. ऐसा हुआ, और after 9 years, flash forward, now we have a lot of hotels, lot of team members who are working. On the other hand, the other side of this coin is when any client goes from our agency, कोई account manager आया बताया ये client है, we cannot work, whatever the issues have been. तो ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस के बाद अभिजीत मुझे लगा है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम और कॉम्पिटिटर इज नॉट द सेम लेवल ऑफ डिफरेंट एजेंसी दैट इज वर्किंग, बट इन मेनी केसेस द कॉम्पिटिटर is young people, 2 to 3 people who have their own office or who are working as freelance and who are 100% available for client morning, day in to day out. क्योंकि शुरू एनर्जी रहती है ना, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं. बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उसको प्रॉपर्ली डायरेक्टेड नहीं किया जाता है. इफ पेशेंस रखा जाए, 1000 दिन तक आप वो एनर्जी या जो डाउन ग्राफ में डाउन फेज आएगा उसको सस्टेन कर लो, तो उस एनर्जी को बहुत बड़े लेवल पे ले जाया जा सकता है, बहुत बड़ा फायदा हो सकता है. देयरफॉर पीपल से, आई वाज सीइंग अ मूवी शेफ, सैफ अली खान की, आई गेस, उसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा. आई वाज वेरी इमोशनल व्हाइल लिसनिंग टू दैट. मिलिंद सोमन है उस मूवी में, और वो सैफ अली खान को बोलता है कि 25 साल वाले नौजवान हमारे, हम when he is 45 years, तो उससे बात कर रहा होता है कि 25 साल वाला नौजवान हमेशा हमसे ज्यादा एनर्जेटिक और पैशनेट क्यों रहता है. बिजनेस के लिए वो प्रपोज करता है, सैफ अली खान वाज रिलक्टेंट, मैं नहीं कर पाऊंगा, जबकि वही 25 साल में उससे 10 गुना बड़ी चीजें कर पाता है. तो वो एनर्जी रख पाते हैं, एंड वी कुड हैव पेशेंस फॉर लॉन्ग टाइम. इवन दीस काइंड ऑफ यंग पीपल कुड डू अ ग्रेट जॉब. सो यंग एज में आपके पास एनर्जी ज्यादा होती है और थोड़ी एज ज्यादा हो जाती है, तो उसमें पेशेंस ज्यादा होता है. तो यंगस्टर्स को पेशेंस चाहिए और 45 ईयर ओल्ड लोगों को एनर्जी चाहिए. Put it best, absolutely. हाँ, तो थोड़ा सा मिक्स करके एजेंसी चलानी चाहिए. वी शुड हैव मे बी दो तीन को-फाउंडर्स ऐसे होनी चाहिए. वन इज 45, वन इज 35, वन इज 25. Absolutely. I think ये बहुत जैसे इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर का कॉम्बिनेशन होता है, ये एक टीम का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है. राइट. सो जो टेलर, आपने बड़ी अच्छी बात बोली अबाउट कैश फ्लोज. यू नो, कैश फ्लो और रेवेन्यू और प्रॉफिट तीनों बहुत अलग चीजें होती है. बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि ठीक है यार, मैंने तो इतने की सेल कर रही, बट वो पैसे आए नहीं आपके पास जी. आपकी सैलरी उसी मंथ जानी है, उतनी ही फिक्स्ड. करेक्ट. आपने मान लीजिए आपने महीने में 1 करोड़ की सेल करी, आपका 50 लाख का खर्चा है, आपकी कलेक्शन भी 50 लाख हुई है, तो इट्स सो डिफरेंट. तो थोड़ा इस बारे में बताएंगे कि हाउ शुड यंग एजेंसीज व्हिच आर स्टार्टिंग ऑफ एंड एवरीथिंग, कैश फ्लो की आपकी क्या राय रहेगी उनको? I think अभिजीत, एक बहुत है ना मिसकंसेप्शन रहता है, मिथ रहता है न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिकॉज दे कीप सीइंग द इंटरव्यूज ऑफ बिग एंटरप्रेन्योर्स जिसमें इन्वेस्टमेंट की, अर्ली एज फंडिंग की, सीड फंडिंग की, सीरीज 1 सीरीज 2 फंडिंग की इतनी ज्यादा बातें होती है कि न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स फॉरगेट द रूट ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज टू जनरेट प्रॉफिट, जो सबसे जरूरी, चाहे आपका सर्विस बिजनेस है, प्रोडक्ट बिजनेस है, एंड पीपल रन बिहाइंड गेटिंग द फंडिंग ताकि एक नाम मिले, जबकि द रियल ऑब्जेक्टिव शुड बी टू अर्न प्रॉफिट्स. तो अगर शुरू से ये माइंड में क्लियर है एंड यू आर वर्किंग इन अ वे कि सिर्फ एक क्लाइंट है, 20,000 पर मंथ पे करता है, तो मेरे एक्सपेंसेस 15,000 के ऊपर नहीं जाने चाहिए. या मेरा अगर रेवेन्यू 1 लाख का हो रहा है, तो मेरे खर्चे किसी तरह से 60, 70, 80 हज़ार पे मेंटेन रहे, ताकि एक प्रॉफिट रहे, ताकि मेरे माइंड में वो स्ट्रेस नहीं रहे दैट हाउ डू आई मैनेज दी फर्स्ट डेट दैट इज कमिंग इन द अपकमिंग मंथ, जब मुझे सारे एक्सपेंसेस पे करने. अगर आपका माइंड पीस पे है, तो आप अपना माइंड बिजनेस को डेवलप करने पे, नए क्लाइंट्स लाने पे, उनके लिए कुछ अच्छा काम करने पे मैनेज कर पाओगे. अगर आप सिंपल सा ये रेशियो ध्यान नहीं रख रहे हो, या आप फंडिंग के पीछे भाग रहे हो, तो उसमें जो मेन आपको जहाँ पे टाइम देना चाहिए वहाँ पे आप नहीं दे पाओगे, और पूरी फिर गाड़ी हिल जाती है. बुक माई शो के ओनर का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उनका एक बहुत अच्छा बेहतरीन इंटरव्यू उन्होंने दिया था, इन विच ही फ्रॉम बिगिनिंग told he was very focused to manage that thing कि इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, we have to bootstrap, but
we have to take care that company should always be in profit. Roots strong रहेंगे तो लंबे रास्ते गाड़ी चलेगी. So इसमें मतलब जैसे आपने कहा कि इसमें लोगों का बहुत योगदान होता है, you know, so अब कोई एजेंसी शुरू कर रहा है तो सबसे जरूरी है कि शुरू में हो 3-4 जोश वाले लोग, क्योंकि Correct. शुरू में गाड़ियां बहुत सारे झटके खाने वाली है. उस टाइम यू नो कि मेरे को दूसरे लोग 50,000 दे रहे हैं, आप मेरे को 60 दीजिए, वैसा आपके पास बजट्स नहीं होते. हाँ. उस टाइम आपको अपने जज्बे से लोगों को जोड़ना पड़ता है. यार मेरे पास एक विजन है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. हाउ डू यू create a founding team? So a lot of time you'll have to do a lot of experiments because her human when you deal with machines it is comparatively easy, but when you have to deal with humans it is the most toughest thing because humans are unpredictable. Every human can have their own need. किसी के कुछ अलग गोल्स हो सकते हैं, किसी के कुछ अलग प्रायोरिटी हो सकती है, किसी के लिए खुद का कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए फैमिली उस पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि इनिशियल फेज में यू कनेक्ट विद एवरीवन पर्सनली, यू नो देम, यू वर्क विद देम लाइक योर पार्टनर और मे बी लाइक योर क्लोज कलीग, और उसको उस फेज ऑफ लाइफ में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर अलॉन्ग विद सैलरी और अलॉन्ग विद वर्किंग यू कैन प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर थिंग, आई थिंक वो थोड़ा सा इमोशनली आपके साथ अटैच रहेंगे. एंड कितना भी गड़बड़ हो रहा हो काम, ये तो मुझे लगता है जब चालू करी थी एजेंसी तब से लेके आज तक वैलिड है. व्हेन वी हैव मोर नंबर ऑफ पीपल, कितना भी गड़बड़ हो रहा हो काम, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करी हो, एज अ एंटरप्रेन्योर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एम्बियंस ऑफ योर ऑफिस शुड बी गुड. इट शुड बी काम एटमॉस्फेयर, हंसी मजाक चलती रहे, और कभी भी ऐसा नेगेटिव या बहुत ज्यादा वैसा हो रहा नहीं हो कि बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई तो एवरीवन इज फीलिंग मॉरली डाउन. इंस्टेड व्हाइल टेकिंग इंटरव्यूज आई लर्नड इट विद द एक्सपीरियंस दैट व्हाइल टेकिंग इंटरव्यूज यू शुड नॉट ओनली जज अ कैंडिडेट विद टर्म्स ऑफ स्किल्स, उसकी सैलरी रेंज में आ रही है कि नहीं, ये सब चीजें, बट ऑल्सो इफ दिस पर्सन विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिविटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन. Oh, wow, that's a good point. I was taking an interview, एक बहुत यंग सा बंदा आया, फ्रेशर था, बहुत लो हाइटेड, आई थिंक ये जॉब पे भी क्यों आ रहा है, अभी तो शायद इसकी एजुकेशन भी कंप्लीट. He said, I am passionate about photography. I want to do photo shoot for your company. 5 मिनट के इंटरव्यू में अभिजीत ही made me laugh at least 10 times. He was very humorous kind. I gave him a chance कि चल तू कर, क्योंकि पॉजिटिविटी आ रही है. After few months, I realized he's the person कि अगर वो ऑफिस में रहता है तो ऑफिस में सब लोग बहुत मस्ती में रहते हैं, हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम में मन लग रहा है, और किसी दिन अगर उसने लीव ली हुई है, ऑफ पे है, तो ऑफिस में थोड़ा न्यूट्रल एटमॉस्फेयर रहेगा. तो उसकी सिर्फ प्रेजेंस इतना ज्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट करती थी कि लोगों की productivity or working experience at full scoop gets increased. So therefore, thought that we should check people on this thing as well. बहुत amazing चीज है. This is a very good point. I really learned something very new today. कि इंटरव्यू में भी देखिए कि पॉजिटिविटी वो क्रिएट, क्योंकि बाद में आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे, उसके अंदर से नहीं आ रहा तो फिर वो डिफिकल्ट है. Correct. On the other hand, you have people whom you find super amazing in interview. उसके कैबिन के बाहर जाने के बाद यू विल फील अमेज्ड कितना बढ़िया कैंडिडेट हायर कर लिया, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज he is raising questions to your processes, or not positively, but he is not contributing that much as you expected. So right. a tricky thing. I think the kind of people that you have on board determines how your company is going to be. Very nice. Absolutely love it. So you know, trained versus untrained people, तो इसका कैसे आप रेशियो डिसाइड करते हैं? कि क्योंकि कभी कभी होता है कि नया क्लाइंट आया और आपको वो बंदा चाहिए जो आते ही स्टार्ट हो जाए, और कभी कभी होता है कि लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव है जैसे आपने बोला, लेकिन उन्होंने वो सब नहीं किया या उस इंडस्ट्री में काम नहीं किया, उसको फिर ट्रेनिंग में टाइम लगेगा. तो उस टाइम आप एक एजेंसी के अपने खुद के बनाए हुए SOPs और सिस्टम्स काम आते हैं कि जो भी नया लड़का आएगा या जो भी नया कैंडिडेट आएगा उसको, तो सिस्टम्स के बारे में बताइए. व्हाट इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम्स एंड SOPs इन अ एजेंसी? राइट. सो 2 थिंग्स. फर्स्ट, जहाँ तक लोगों की बात करें तो मेनी टाइम्स वी ट्राइड, जैसे मैंने पहले बोला कि टेस्ट हायरिंग कर ली, बंदा अच्छा लग रहा है इसलिए कर लिया. वी फाउंड अ फॉर्मूला दैट वी शुड हैव पीपल इन जॉब पोजीशन ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग. It is not even an internship, not even a full-time working, but an on-job training that is offered to any potential candidates for 2 months. Because the industry we are into, we do not get many people who have done the qualification, education, or have a lot of experience. बहुत बार लोगों को बेसिक से ट्रेन करना पड़ता है, because this is not too old industry. So वो ट्रेनिंग के लिए on-job ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है. They remain on field instead of learning through the books. They learn by working in an agency, and that gives them more return compared to doing a diploma from any certified institute. उन्हें एक रियल प्रैक्टिकल लर्निंग सीखने को मिलती है.
Out of 10 people we give on-job training, at least 2 from that particular group become a very potential team member to the agency, who later on handle clients in a very nice way. क्योंकि उनमें पैशन रहता है, सारी चीजें रहती है, बस थोड़ा सा एजुकेशन या अवेयरनेस सोशल मीडिया की रिक्वायर्ड रहती है, जो ऑन जॉब ट्रेनिंग से जब बाकी 50 लोगों के बीच में आप बैठे हो जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो अपने आप व्हेन यू सिट फॉर अ मंथ और 2 यू ऑटोमेटिकली गेट दैट थिंग। राइट और राइट प्रोसेस की बात करी, आई वुड से आई एम स्टिल इन दैट बोट। आई कीप सीइंग योर वीडियोस, आई एम इंस्पायर्ड। मतलब आप तो बहुत आगे हैं, मैं कंसिडर करता हूँ टू द डायरेक्शन आई एम इनटू, बट प्रोसेसेस एक ऐसी चीज मुझे लगती है अभिजीत जो कभी खत्म नहीं होती है। इट हैज टू बी देयर इन एवरी ऑफिस। कुछ बड़ी एमएनसीज की कभी स्टोरी सुनते हैं, कुछ फ्रेंड्स काम करते हैं, वो बताते हैं, तो समझ में आता है कि वो बड़ी कंपनी बड़ी इसीलिए बनी है क्योंकि उनके यहाँ छोटी से बड़ी हर चीज की प्रोसेसेस है। सो आई स्टिल, छोटा सा एडमिन का बंदा आया कि वाईफाई नहीं चल रहा है, तो उसकी भी प्रोसेस होनी चाहिए कि जब वाईफाई नहीं चलेगा तो ये नंबर लिखा हुआ है आपके डेस्क के बाहर, कॉपी पेस्ट करके रखो, इस पे कॉल करना है, या तो बैकअप में एक और वाईफाई लगवा के रखना है, से लेके जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्लाइंट्स चले गए, इस बार का कैश फ्लो अप डाउन हो रहा है, तो आपने रिजर्व कैसे मेंटेन रखें। इफ यू कैन रन योर बिजनेस एटलीस्ट फॉर 3 months विदाउट योर प्रेजेंस, आई थिंक यू हैव स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस। Lovely. I love that. If you can run your business 3 months without your presence, you have good processes. Beautifully said. मनीष, मैंने रिसेंटली देखा आपने कोई वीडियो बनाया था या आपने मुझे बताया था, आपने 1 साल पहले या 2 साल पहले you made a beautiful office, very nice. Yes. तो वो थोड़ा सा मुझे बताइए that to create a beautiful office दिल से बनाया वो लग रहा था, ऐसा नहीं था कि आपने आर्किटेक्ट को बोला बना दो, मैं 2 महीने में आके देखूंगा, पता लग रहा था दिल से बनाया है। तो पहली बात तो वो what was the reason behind making it, and how did that whole environment, क्या उस environment से भी फर्क पड़ता है? So this topic is very close to my heart because office is the first ownership I had after I started business. अच्छा। एकदम शुरुआत करूँ मैं तो it was the first investment in real estate what I did, और वो directly office में, because Fullscoop has been my baby and I wanted to do everything. Of course, बिल्कुल। Company itself. तो इसकी शुरुआत एकदम शुरू से ये हुई थी कि people who were on the top position back in 2016-17, we started hunting for an office together. First of all, शुरुआत ही साथ में देखने से करी कि option 1, option 2 ये है, so that people are emotionally connected from, because उन्होंने final करी है। अगर उनको ये फीलिंग आ रही है this place we have finalized out of few options, उससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती है। Beautiful. फाइनल करी, इसलिए फिर उसको बनाने में भी they were also very much involved emotionally. We did not had an interior, we ourselves did everything and we divided the responsibilities. आपने वीडियो में देखा होगा तो the best is yet to come, या हम इंदौर से हैं तो इंदौर के जो जार्गन्स चलते हैं, भैया तेरा, जाकिर खान के इसमें आपने देखा होगा, जाकिर खान भी इंदौर का है, सारे उसके इस टाइप के वर्ड्स आते रहते हैं। तो एक बंदे को मेरा फेवरेट है जाकिर खान, he's absolutely a pride for Indorians. हाँ। जितनी भी डिजाइन्स बनेगी, we had the senior designer पार्थ, ये डिजाइन्स सारी आपको बनानी, आप कैसे बना रहे हो, इंदौरी फ्लेवर देना है, तो एक वॉल स्पेशली इंदौर के डायलॉग्स की बना दी, एक वॉल मोटिवेशन की बना दी, द बेस्ट इज येट टू कम। कैंटीन में एक वॉल बना दी जिसमें थोड़े देसी टाइप के डायलॉग्स हैं हिंदी में, तो उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। एडमिन पर्सन, ही वाज आल्सो इन द एजेंसी सिंस बिगिनिंग, उसको पूरा इलेक्ट्रिक का प्लस इंटरनेट वायरिंग सिस्टम ये सब आपको देखना है, तो बेसिक काम ऐसे डिवाइड हो गया। दैट वाज द वे वी डिड। अच्छा, ये जरूरत क्यों पड़ी थी? बिकॉज we were struggling to sustain good team members. कुछ थे, बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है चले जाते हैं, तो उस टाइम पे एक रीजन माइंड में ये आता था, शायद ऑफिस इज एवरेज, इसलिए वी डू नॉट हैव, आई एम स्टिल नॉट 100% श्योर दैट थॉट वाज करेक्ट और नॉट। कई बार वो एग्जांपल सही भी साबित होता है, कई बार गलत भी होता है, बट दैट वाज द ओरिजिन व्हाई वी थॉट टू हैव अ प्रॉपर ऑफिस। प्लस अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, करके देख लेना चाहिए। गुड आइडिया। हाँ। So that way we created, we wanted to keep it very calm, so therefore white color was used overall. Second, Fullscoop के लोगों में orange color use होता है, so 20% orange, 80% white. White रखना है, ये day one से short. Even if you'll see my room behind, it is white. So usually white color मुझे is personally my favorite. I feel quite positive with that color. तो white रखना है, plus business logo के color को mix करना है उसमें. That was the way. और open रखना है। मतलब अभी शुरू में जब ऑफिस स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया, तो लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड, क्विकली द क्लाइंट सर्विस मैनेजर इज रनिंग टू डिजाइनर कि इस होटल से कॉल आया है, अभी चाहिए। कितना भी बड़ा होटल हो, एवरीवन कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेसेस बना ले, लास्ट मिनट में बहुत चीजें आती है। ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट, कितने भी आप ऑर्गेनाइज्ड उनको सजेस्ट कर लो, वो ऑर्गेनाइज्ड काम कर लें, तो लोग एक दूसरे के पास भाग रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, डिजाइन बनवा रहे हैं, वो चीजें चलती है। एंड वी वांटेड टू कैरी इट फॉरवर्ड। प्रोसेसेस बनानी है, पर साथ में, क्योंकि उससे
माहौल भी बना रहता है, पीपल आर कनेक्टेड विद ईच अदर. सो वर्क बहुत बड़ा एक कॉमन बना दिया. एवरीवन विल सिट टुगेदर, देयर विल बी नो इवन डिविजन्स बिटवीन टू पीपल, they'll have the open. और उस चीज का आई थिंक फायदा ही मिला है कि अभी तक people gel up well with each other very quickly. ग्रेट. तो आपने कोई ऑफिस का अपना नाम रखा है? No name as such. अच्छा. ओके, बट वेरी नाइस. मैंने वीडियो देखा और उसको लिंक भी कर दूंगा फॉर ऑडियंस को देखने के लिए. बहुत ही अच्छा ऑफिस आपने बनाया है. वेरी नाइस वाइब एंड वेरी दिस थिंग. सो बहुत सारे एजेंसी लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं चैनल पे. तो हम हर मंडे एजेंसी सीरीज करते हैं, एवरी मंडे. तो उसमें एजेंसी वाले लोग आते हैं. अभी मैंने वरुण डुग्गी का इंटरव्यू किया जो बॉम्बे में उन्होंने अपनी एजेंसी को सेल किया. एंड नाउ वी गोइंग टू इंटरव्यू हिज वाइफ नेक्स्ट वीक. निमेश शाह है बॉम्बे के, वो नेक्स्ट वीक. तो कौन सा एजेंसी पीपल. विवेक भार्गव का हमने इंटरव्यू किया था जिन्होंने डेंसू को अपनी को दे दिया था. सो गैरी वेनरचक तो एजेंसी वाले, उनका ऑलरेडी हम इंटरव्यू कर चुके हैं. आई इंटरव्यूड समबडी अभी 2 weeks बैक. वो Daryl, I mean, he is so amazing. टोरंटो में he is running a multi-million-dollar agency. और कितनी कामनेस से उन्होंने बताया. मैंने कहा इतनी कामनेस कैसे है इतनी बड़ी एजेंसी चलाने में. तो वो इंटरव्यू आप देखिएगा कि कैसे उन्होंने उन सब चीजों के बारे में बात करी. सो बेसिकली मेरा 13 साल से एजेंसी चलाने के बाद मेरा ये है दैट तो you connect with other agency owners and you understand. B, the thing is कि जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे बाद जो लोग आ रहे हैं, वो ये सेम गलती ना करें. ये सोच के कि यार ये तो ग्लैमर और सब कुछ इसी में है, और पीछे जाके पता लगता है कि यार तो ये तो सबसे बड़ी चीज तो कैश फ्लो, प्रॉफिट मैनेजमेंट और सेल्स की है, और पीपल मैनेजमेंट. और तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं इन चारों चीजों पे थोड़ा आता हूँ. पीपल मैनेजमेंट, लोगों के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में या मैनेजमेंट के साथ, तो आप उसका क्या आपका सजेशन, हाउ डू यू फिक्स दैट? मुझे लगता है विजीत सबसे बड़ा सॉल्यूशन उन इश्यूज का है टू rely completely on some selected people and trust them limitless. बल्कि शायद आपको जितना मैं फॉलो करता हूँ ये चीज आपसे भी कहीं सीखी है. I've been inspired with you on several aspects. I keep seeing you spend so much time in your own PR, which is the biggest inspiration I find in you, the biggest positive thing. और वो शायद आप इसीलिए कर पाते हो because you also have a team on which you have left lot of working independently. Decision ये power हो गया, execution हो गया. And same thing is what we also try, that if so that also helps me to remind a quote which I read somewhere. The most important part of an entrepreneur is to hire some great people and to get out of the picture. अगर आप करते रहोगे तो चीजें उतनी अच्छी नहीं होंगी. So if you are hiring some star people, if you are investing so much, then let them run the show. So that helps you to see the things from broader angle, helicopter view. You can invest your own time and energy probably in some bigger task, in better task, and थोड़ा बहुत up down आएगा by default. अगर आपके present business XYZ% से grow हो रहा है, उनके इससे XYZ minus थोड़ा सा होगा, but आपकी दूसरी जगह presence उसको वो कर देगी, compensate कर देगी. 100%. ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है. that जब मैंने शुरू किया था ना, पहले 4-5 साल मेरे को लोग बोलते थे you're very emotional. And because there are some senior people who've been working with me for 10-13 years, and they're like, वो मेरे मतलब I would say that they're my cousins, they're my brothers. मतलब ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, but they are like that, you know. So and you started the agency, people are there working since then. Yes, we've got 10 people, more than 10 people. So you know, some of them are like my brothers, and you know, we like that. So मेरे को जब लोग बोलते थे नहीं काम में इतनी वो नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में, तो मेरे को और कोई तरीका समझ नहीं आया और कैसे होता है कि आप उसको दूर रखो और वैसे करो. सो बहुत ज्यादा ओपन डिस्कशन होती है. कोई भी ऑफिस में मेरे को कुछ बोल सकता है कि सर ये गलत कर रहे हो आप, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होना. बिकॉज वी ऑल लव, वन इज द मदर, वन इज द फादर. एक चाचा जी हैं, एक बुआ हैं, तो सब बच्चे को देख रहे हैं, तो उनको अगर लगेगा बच्चा गलत जा रहा है तो सब साथ में बोलेंगे. करेक्ट. सो and now we've created a new series called Heart Worker. Yes. We are trying to talk to everybody from the heart. कि भाई दिल से बात करो, किसी को कोई चीज बुरी लगी तो करो. हो जाती है गलती आपस में बात करने से. I try my best and I think I do it pretty okay. That मैं मतलब बदतमीजी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. कि एक ना मेरे दादाजी बोलते थे कि बातों में ही सब है. आप बातों से दिल जीत सकते हो, बातों से क्लाइंट जीत सकते हो, बातों से सब कुछ हार सकते हो. Yes. कुछ बोल दिया, किसी को दिल में बात लग गई तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा, ना क्लाइंट ना वो. और अगर दिल से बात लग गई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट जीता है तो इट इज बिकॉज पीपल हैव सेड मजा आ गया आपसे बात करके, दैट्स इट. उसके बाद काम तो बाद में ही पता लगना है ना. हम काम पहले कितना दिखा दोगे.
Yes, हम तो बाद में ही पता लगता है. बिल्कुल. So when it comes to हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बिजनेस में, किसी भी कलेक्शंस, Yes, पेमेंट ऑन टाइम. बहुत तो बहुत. उसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? जो लोग नए लोग स्टार्ट करते हैं ना, वो लोग हाँ. नए बच्चे आते हैं, वो देखते हैं बहुत बड़ा ब्रांड है, वो कहते हैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, कहते हैं यस सर कुछ भी कर लूंगा आपके लिए. और उसके बाद उनको समझ आता है कि आपके पैसे के पीछे ही उनकी लाइफ लग गई है पीछे. तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी? बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आपने जो इसके पहले बोला टॉपिक, उसमें एक चीज और ध्यान आ रही है एज अ एंटरप्रेन्योर, या अगर बिकॉज पीपल हु आर सीइंग दिस वीडियो प्रोबेबली आर ऑडियंस हु आर थिंकिंग टू स्टार्टअप. तो जो एक मैन इन कमांड रहता है, he has the highest authority in the organization, so he probably can take a extreme step कि जब भी दो लोगों में people conflict की हम बात कर रहे थे, तो दो लोगों में अगर conflict हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके overall working hamper हो रहा है, they may have a glass ceiling to not get it solved even after they are having an intent to, but because आप ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि आपने एक क्लोज्ड कैबिन में बुलाया, आमने सामने बिठाया, जैसे हर घर में फैमिली मेंबर्स के बीच में भी होता है. अगर कोई मैरिड है, सास बहू वाली चीज तो हर किसी ने अपने घर में देखी होगी, भाई बहन वाली देखी होगी. देयर इज नो रिलेशन हु डज नॉट हैज अ कॉन्फ्लिक्ट. तो वो वाली चीज अगर ऑफिस में भी सेम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि दो जनों को आमने सामने बिठाइए, उनको टॉपिक भी थोड़ा सा अगर शायफुल फील हो रहा है, ब्रिंग दैट टॉपिक ऑल्सो ऑन बोर्ड, दैट आई हैव हर्ड दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंड, दिस इज द टॉपिक, बताइए क्या हुआ. उसके बाद आप शांत हो जाओ, अपने आप हो जाएगा. एक किक स्टार्ट देने की शायद कभी कभी जरूरत होती है, जो वो खुद नहीं दे सकते हैं. ईगो इशू या जो भी इशू बोले, अगर आप वो किक स्टार्ट दे देंगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद फिर आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा. वो इतना बोलेंगे कि अपने आप चीज सॉल्यूशन तक पहुंच जाएगी. वेरी गुड. और ये बहुत जरूरी बात आपने बोली कि कोई भी मैनेजर है, कोई भी सीनियर मैनेजर है, कोई भी फाउंडर है, ओनर, जिस भी लेवल पे आप एक लीडर हो, आपकी टीम में जहाँ कोई छोटी चीज है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, साथ में बात करनी जरूरी है. करेक्ट. बिकॉज काम ही हमारा जो है वो लोगों से चलता है, और लोग आपस में एक दूसरे के साथ, और देयर इज नोबडी राइट और रॉन्ग, बैठ के बात करना जरूरी है. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. सेकंड, जो कलेक्शंस का आपने बोला अभिजीत, वो तो सबसे बड़ा चैलेंज है. बाकी सब चीजें ग्रो हो गई 9 इयर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस में, वाली चीज का कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिला है. और खास करके इंडिया में, आई हैव हर्ड, आई हैवंट वर्कड आउटसाइड, बट इंडिया में ऐसा सुना है ज्यादा रहते हैं challenges in this thing. I could be wrong, but we have had to have a team of 2 accounts people who are dedicated just for following up. Follow up का सॉल्यूशन ढूंढने की जगह आपको शायद एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि आपको मल्टीपल फॉलोअप्स सॉफ्ट वे में, हार्ड वे में, मल्टीपल वे में लेना पड़ेगा. कभी बैक टू बैक लेना, और हर क्लाइंट का अलग रहता है. कोई क्लाइंट्स बहुत इरिटेट हो जाएंगे कि रोज क्यों आपका मेल आता है, फोन आता है, रेड टाइम में आपने मेल कैसे कर दिया हमको, भले उनका 6 महीने से पेंडिंग है पेमेंट, आई नो. कैसे कर सकते हो आप. तो उसका यही सॉल्यूशन है कि आप फाइट करते रहो उस चीज से, बट नेवर लीव इट. मतलब आपको एक टाइमलाइन रखनी पड़ेगी, 3 months या 4 months तक के पेंडिंग पेमेंट्स आर ओके. उससे ज्यादा रहेगा तो डायरेक्टली यू एज अ ओनर विल हैव टू स्पीक एंड गेट इट रिलीज. और नहीं हो तो एक पर्टिकुलर टाइम ये भी आना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, जब आप आगे बढ़ के बोल सकें दैट वील हैव टू स्टॉप दिस. अच्छा, ये चीज आई कुड नॉट डू इन स्टार्टिंग ऑफ माय बिजनेस. भले बेड डेप्ट्स में दिख रहा है जा रहा है अमाउंट, या कोई क्लाइंट से बहुत कम रिटेनर पे साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, बट because you started with lot of efforts, you are emotionally connected as a founder, तो शायद आप ना नहीं बोल पाते हैं उस टाइम पे. Later stage of my career I realized it is sometimes good to say no instead of working in a way जो आपको ही frustrate करे या आपके resources को wrongly utilize करे. It happened with us very recently, a year or couple of years back, when we took an effort, took an initiative to say a client कि आपका जो retainer है उसमें ये काम नहीं कर पाएंगे, we are sorry, let's depart in an amicable way. बट उसके बाद एक सेंस ऑफ रिलीफ मिला कि वी वर फाइटिंग अ बैटल व्हिच डिड नॉट हैड दैट मच ऑफ रिवॉर्ड्स. वो पहली बार हुआ था, बट उसके बाद वी आर लिटिल क्लियर, और खुद पे भी कॉन्फिडेंस रहता है कि आपकी सर्विसेज आर नॉट बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड. आप खुद की सर्विसेज करोगे तब तक दूसरे लोग भी नहीं करेंगे. नहीं, this absolutely comes as I believe that the leader has to take a chance to say, you know what, if I love myself, जैसे अगर हमारे घर में बच्चा होता है, हम आप कहते हैं हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छे कॉलेज में जाएगा, उसको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, तो हमारी एजेंसी भी हमारा बच्चा है, एंड अगर हमने इतने साल लगा दिए उसमें, so when somebody undervalues it, so we have come to 30 days एडवांस में पेमेंट चाहिए उसी साइकिल के. अगर 30 डेज के अंदर नहीं आता तो 2 नोटिस जाते हैं, उसके बाद हम बंद कर देते हैं. ओके. बिकॉज कोविड ने एक चीज सिखा दी, दैट इफ व्हाट यू हैव इन योर बैंक इज योर्स. आप कह सकते हो कि मेरे पास, मैंने 5 करोड़ लेने हैं मार्केट से, 10 करोड़ लेने हैं, वो सब पेपर पे है. करेक्ट. जो आपके हाथ में है वो आपके पैसे. सो दैट इज व्हाई आफ्टर कोविड वी हैव बिकम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. आप हमारी सर्विसेज के लिए हमारे को फायर कीजिए अगर आपको काम नहीं पसंद. हमारा कहना अपने क्लाइंट्स को ये है कि अगर आप
अपनी टीम को, आपकी टीम आपको ग्रो करती है, उनको आप साथ में सैलरी देते हो, तो अगर हम उस लेवल पे नहीं है आपके ट्रस्ट फैक्टर में, तो फिर हमारे को मत हायर कीजिए. वी वांट टू बी इन दैट सेम लेवल, ताकि हमारे को भी टाइम पे पेमेंट मिले. करेक्ट. अच्छा, देयर आर सम क्लाइंट्स जिनके साथ शुरू से हमारा 1 महीना 2 महीने वाला है, कुछ बहुत बड़े क्लाइंट्स हो, वो हम सोच के देखते हैं कि उसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए. हाँ. ठीक है, अगर आप 2 महीने बाद दे रहे हो तो फिर 2 महीने बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है. वो तो सोचा समझा. पहले तो ऐसे था कि जो आ रहा है बस आप आ जाओ, तो वो वाली चीज टीम को हर्ट करती है. एंड आई रियलाइज एज अ लीडर इट इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज वो जब पेमेंट लेट आती है, आप आगे टीम का इंसेंटिव, सर मेरा इंसेंटिव आने वाला है, हाँ इंसेंटिव, कैश फ्लो आएगा, इंसेंटिव शुरू होगा, कैश फ्लो आएगा, नया ऑफिस बनेगा, कैश फ्लो आएगा, नया. सो वो कैश फ्लो कब आएगा वो तो हमारा ही डिसीजन है. सो देयरफॉर, अच्छा बहुत दर्द हुआ जब 10 से आई थिंक 15-20% क्लाइंट हमने कहा हम नहीं लेंगे. कोविड के बाद जब रीस्टार्ट हुआ ना, तो एक थोड़ा सा डर था, लेकिन आई थिंक हमारी टीम में, हम सब में एक चीज कॉमन थी, डर और रिलीफ दोनों था. यार बड़ा मजा आया इसके बिना. तो कुछ लोगों ने रिटेनर बढ़ाए, कुछ लोग चले गए. बट द थिंग इज, व्हाट आई हैव लर्नड इज फ्रॉम ऑल दीज इंटरव्यूज दैट आई हैव डन, एंड आई हैव मेट सो मेनी पीपल, यू नो, और ये जो मैंने, आई डोंट नो मैंने आपके पास ये किताब भेजी कि नहीं भेजी, तो मैं रोहिणी को बोलूंगा भेज दे. तो आई रोट दिस बुक, वी इंटरव्यूड 62 पीपल, एंड इसमें बहुत सारे मल्टी मिलियन डॉलर एजेंसी वाले लोग भी हैं इंडिया में, बाहर. सब लोगों ने बहुत सारी चीजें कॉमन थी. मैंने 15 क्वेश्चन, सबसे 62 लोगों से हमने 15 क्वेश्चन पूछे, उसमें कॉमन थीम निकल के आई. उसमें एक चीज ये थी दैट इफ यू डोंट कंटिन्यू इंक्रीजिंग योर प्राइस, राइट, यू आर नॉट गोइंग टू बी इन द मार्केट, बिकॉज उसी प्राइस में इन्फ्लेशन वगैरह वो सब नहीं होने मिलने वाला. और दूसरा द थिंग इज दैट वी लर्नड मेनी अदर वेज ऑफ डूइंग द प्राइसिंग आल्सो, दैट यू कैन हैव, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक 1 लाख रुपए रिटेनर, तो वो तो कम नहीं होगा, बट 1 के ऊपर 15% मुझे मिलना चाहिए इफ आई गिव यू एक्स्ट्रा रेवेन्यू बाय एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, सो दैट आगे का भी मेरे पास अपसाइड हो. एक फियरलेसनेस अंदर से आनी चाहिए कि यार क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो दूसरा मान जाएगा. सो नंबर ऑफ क्लाइंट, पहले हमारा था वी वांट टू हैव 500 क्लाइंट्स, 400 क्लाइंट. अब हमारा ये फोकस है वी वांट टू हैव वेरी लिटिल क्लाइंट्स एंड मोर डीपर रिलेशनशिप्स, कि हम उनसे 3-4 तरीके से पैसे बना सकें. एंड यू नो, एक वो भी बना रहता है. सो या, सो दैट्स वन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मेरा आपसे, कि व्हेन इट कम्स टू, यू नो, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली, एसओपीज बनते हैं, फिर उसको और बार-बार रिवाइज करना पड़ता है, थोड़ा और ठीक करना पड़ता है. बट देयर आर सॉफ्टवेयर्स लाइक बेसकैम्प एंड सम अदर सॉफ्टवेयर्स दैट वी यूज फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ दैट. सो दोज आर सम गुड एचआर के लिए सॉफ्टवेयर्स है, अकाउंट्स के लिए टैली है, ऑटोमेटेड ईमेल्स, ऑटोमेटेड फॉलोअप्स वगैरह, वो सब चीजें जाती हैं. बट व्हेन इट कम्स टू यू नो your when it comes to future plans, right? So we look at 50, because अब कोविड के बाद we believe there's a huge market now. कोविड ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि डिजिटल है और all of that. So after COVID and before COVID, what is the difference in the thinking? और कैसी होनी चाहिए जो लोग आ रहे हैं? Right. During COVID, Avijit, it started happening during COVID. बाद में भी चलता रहा वो, that people were shuffling quite frequently. कुछ लोगों को मजबूरी में डिसीजन लेके companies were required to keep on hold. Many people themselves were moving to some other opportunities, working from home. बहुत changes हर कंपनी में हुए, and because of quick changes in the team members, our energy in training was being spent on a very high extent, much more. मतलब पूरा दिन सिर्फ ट्रेनिंग देके एग्जॉस्ट हो जाओ, ऐसा फील होता था at the end of the day. So top team was not able to spend time in other important tasks like business development or maybe doing some creative work for top clients. We were not able to do. Ultimately, we thought to create a new process, जिसकी हम बात कर रहे हैं, that is to have operations manual kind of small booklet for each profile that you have in agency. Everything from accounts to client service manager, graphic designer, एक operations manual होगी, चाहे भले वो single page की. आपको क्वेश्चन आएगा ग्राफिक डिजाइनर के लिए क्या लिखें, उनको तो नॉर्मल डिजाइन्स बनाना है. क्लाइंट सर्विस मैनेजर के लिए तो बहुत लंबी हो सकती है, क्लाइंट से कैसे बात करना, उनके वो तो फेस रहते हैं एजेंसी का, सबसे ज्यादा अच्छा ही होती है तो भी उनको जाती है, सबसे ज्यादा चैलेंजेस होते हैं तो भी उनकी शोल्डर पे आता है. पर चाहे डेकोरेटेड प्रोफाइल हो या कोई बेसिक प्रोफाइल हो, सबकी एक ऑपरेशंस मैनुअल रहेगी ड्राइव पे ही, पीडीएफ फाइल, व्हिच वी विल गिव टू एनी न्यू कैंडिडेट हु इज जॉइनिंग इन दैट प्रोफाइल. तो उससे एटलीस्ट ट्रेनिंग वो कम हो गई. वी हैव सम रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ आवर टॉप टीम एंड पीपल हु इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. सो कोई क्लाइंट सर्विस पे ज्वाइन कर रहा है तो उसको हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस
एक ऑपरेशंस मैनुअल की बुकलेट प्लस एक टॉप क्लाइंट सर्विस मैनेजर प्रोफाइल पे जो बंदा है उसका वीडियोस, ये चीजें शुरू के 7 दिन में एक स्टफ फोल्डर में दे दिया जाता है. यू हैव टू मैनुअली कनेक्ट, हाय हेलो करो, लंच लो साथ में, बट काम के रिलेटेड आपको कोई प्रेशर नहीं, कोई बात नहीं, जब जितना आपको देखना हो देखो. 7 दिन में आपको ये सारे वीडियोस क्लोज कर. उससे ये फायदा हुआ कि 7 दिन बाद जब वो कैंडिडेट आपके पास अभिजीत मिलने आता है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है उसको. आपकी बैकग्राउंड जो वीडियो की आप बात करें वो भी उसमें दिखाते हैं हम लोग कि इस तरह से ऑफिस पहले वहां था, पुराने ऑफिस के कुछ पिक्चर्स आते हैं, नए ऑफिस का वीडियो आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपने तो अभी ज्वाइन करी है बट इसकी ये हिस्ट्री रही है, ये लोग हैं जो इतने सालों से जुड़े हुए हैं, इस टाइप के क्लाइंट्स हैं, ये ग्रुप्स के साथ काम करते हैं. फिर आते हैं आपकी प्रोफाइल पे. आपकी प्रोफाइल में आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, आपको ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के लिए ये अपॉर्चुनिटीज हैं, इस तरह से हम बढ़ सकते हैं. तो 7 दिन बाद वो आपके पास एटलीस्ट थियोरिटिकल ट्रेनिंग लेके आता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फिर काम अपने आप सिखाता जाता है. राइट. तो मनीष, आपको जैसे आपको 9 साल हो गए एजेंसी चलाते हुए, एंड इट्स मतलब मेरा तो ये मानना है एजेंसी चलाना आसान काम नहीं है. तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें होती है, बट धीरे धीरे करके ब्रांड बन जाता है तो थोड़ी आपको आदत हो जाती है कि उस मुश्किलों को झेलने की. ये नहीं है, मुश्किलें आसान नहीं होती मुश्किलें, बट वो आदत हो जाती है उनको करने की. बट आज की डेट में अगर आप देखो, मैं बॉम्बे गया था, बहुत सारे यंगस्टर्स को मिला मैं. बहुत अच्छी एजेंसी है शबैंग करके, 3 यंगस्टर्स ने स्टार्ट करी है. फिर वो अपने रणवीर अदाबादी एंड विराज जो है अपने बॉम्बे एंटरटेनमेंट, ये तो I think all of them are like 50, 60, 100 crore companies. These youngsters, they're all under 30, and these kind of companies have been created. और आप और मैं जो हैं, हम लोग एक नीश में हैं. तो होटल इंडस्ट्री जो जहाँ तक मेरा वो है कि 25-30 करोड़ 35 करोड़ तक का एक वो है, एक एजेंसी एक नीश में जाती है इंडिया में छोटे. तो नीश में रहना, हम शुरू से नीश में रहे हैं, तो नीश में रहना उसकी कोई रिग्रेट्स या कभी, या जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं जैसे मैं एक नीश से स्टार्ट करूं या जो आ रहा है वो ले लूं, तो आपकी क्या राय रहेगी? Abhijit, I started with all industries starting में. So I'm from Indore, like I said. यहाँ पे सरोवर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, सरोवर पोर्टिको, which was first that was there on board with us. उसके अलावा टारगेट ये नहीं था कि नीश में काम करना है, टारगेट ये था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उसके टॉप 2 ब्रांड्स कौन से आइडेंटिफाई करो और उनको टारगेट करो. जिम्नेशियम में गोल्ड जिम इंदौर बहुत अच्छा है, उनको टारगेट करो. सिमिलरली फर्नीचर में एक ब्रांडेड नाम है यहाँ पे, वो टारगेट करो. वी हैड 5 to 6 क्लाइंट्स इन वेरी बिगिनिंग, बट विद इन 3 to 6 months वी रियलाइज दैट होटल को सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल पा रहा है. और उन्होंने हमें बढ़ाया, कॉर्पोरेट ऑफिस, दिल्ली सरोवर्स, गोवा सरोवर, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, दे गॉट अस कनेक्टेड. तो वहां पे ग्रोथ दिख रही थी. सो इट बिकेम अ बाय डिफॉल्ट चॉइस in hotel. It was not pre-planned, it gradually happened with me. So yes, मतलब वो वाली चीज हुई, उसकी वजह से then focus became more onto that. But बाद में कभी भी regret नहीं हुआ, because जैसे कंपनी का एक नाम बन जाता है तो आपको ब्रांड नेम के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, that customers come to you through word of mouth. वैसे ही नीश में हो उस चीज का भी आपको बेनिफिट मिलता है, that customers prefer you over other agencies. After years, one thing have definitely changed, that we have to take more responsibility. जब ऐसा कोई कॉल आता है कि आपके बारे में उनसे सुना है, therefore we wanted to talk to you and have the proposal, that gives you a sense of adrenaline rush and a responsibility वाला factor कि अब तो मतलब काम करना है. वो वाला फैक्टर नहीं है कि बस क्लाइंट आ रहा है जो पैसे दे रहा है. That is just another client. That is not just another client. That is a big responsibility because someone somewhere have trusted on you and have referred you. तो you cannot let anyone down in that case. तभी वो ब्रांड फिर आगे सस्टेन होती है. सो वो ट्रस्ट वाला फैक्टर चाहे एम्प्लॉइज हो या क्लाइंट्स हो, वो मेंटेन अगर रख पाते हैं तो आई थिंक इट इज गुड फॉर द फ्यूचर. लवली. तो आप कह रहे हो कि जब भी कोई एजेंसी वाले अभी जो सुन रहे हैं, जब वो अपनी एजेंसी अगर जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो डजंट मैटर नीश है या वो है, स्टार्ट करो, अपने आप रास्ता दिखेगा, जहां ज्यादा रिस्पांस आ रहा है उस तरफ आपकी डायरेक्शन बढ़ती रहेगी. ये तो पहली चीज है. बिजनेस का नंबर 1 रूल है दैट अगर घर से निकले ही नहीं हो तो कुछ नहीं होगा. घर से निकलो रहेगा, तो वो तो यू हैव टू फॉलो. और अगर बाद में आपको वो रास्ता मिल रहा है, व्हेन यू हैव द ऑप्शंस निश और नॉट निश, देन द आंसर इज निश इज ऑलवेज अ बेटर थिंग. आपको खुद को भी एक एक्सपर्टाइज हो जाती है, आपको खुद को शायद मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी बातों में एक एक्सपर्टाइज सामने वाले को शो होगी. आपके लिए शायद वो नॉर्मल पॉइंट्स हैं, लेकिन सामने वाले के लिए वो एक्सपर्ट सजेशंस हैं जो आप दे रहे हैं. मनीष, मेरे लास्ट क्वेश्चन है, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू. मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो? जैसा आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं लगता लोगों को मैनेज करने में. आप पर्सनली उनसे यू डोंट फाइंड द अनदर वे. पर्सनल कनेक्शन रहता है टीम मेंबर्स से.
I find replica to that even with me. अगर आप देखेंगे even on social media एक ऐसी चीज लगती है मुझे जिसमें हर कोई वो चीज शो करता है जो उसको सबसे ज्यादा प्यारी होती है. If someone is very much totally into family तो family की pictures, कोई बहुत oriented है तो आप उसके Instagram प्रोफाइल पे कैरियर की फोटोज देखोगे. Social media is the reflection, a mirror to someone's priority that he has in life. Similarly for me, more than the number of clients or growth, when my team is gelled up well with each other, मुझे दिखता है a happy atmosphere in the office, that is something that motivates me always to do more. More than when new client comes on board with the highest retainer, what motivates me is मैं ऑफिस के बाहर हूँ, मैं सडनली मीटिंग के बाद ऑफिस गया, मैंने देखा सब लोग मिलके मैगी पार्टी कर रहे हैं और सबके चेहरे पे they are enjoying with themselves. उससे ज्यादा खुशी मुझे किसी से नहीं मिलती. If people are happy, that could be a not so professional thing or whatever people would want to call, but मुझे लगता है कि कुछ बड़ा नहीं तो at least this is the thing that we have achieved in life, that we have brought some people together, have given them a good platform to show their creativity, to work, and बस यही that is what I. No, that is beautiful. But जैसे होता है ना, जैसे कोई आप योगा या एक्सरसाइज या कोई रीडिंग या ऐसी कोई चीजें आप करते हो तो अपने आप को in personal स्ट्रांग रखने के लिए? Reading is something I'm very passionate about, and management books काफी पसंद है. That is something that I love to spend at least 20-30 minutes per day. और वो नहीं रहता है तो फिर उतना मोटिवेशन फील नहीं होता. अगर रीडिंग कर ली है थोड़ी तो ऐसा लगता है कि one of the pipeline in you is motivated, it is on to the top 10 on 10 है, तो बाकी चीजों में ज्यादा productively we can spend time. So reading books is the answer to this question. You know, मैं भी एक चीज शेयर करना चाहूंगा. You know what I लेट मैंने रियलाइज किया, लेकिन पहले मैं क्या करता था, पहले मैं जब सब बड़े लोगों से सीख के रीडिंग करनी है, योगा करना है, हमारा गायत्री मंत्र होता है हमारे ऑफिस में 2 बजे रोज, सारा ऑफिस गायत्री मंत्र करता है और पिछले 13 साल से एवरी डे मंडे टू फ्राइडे सारी टीम दोपहर को 2 बजे होता है. और अगर हमारे क्लाइंट बैठे हैं, कोई भी क्लाइंट बड़े से बड़े होटेलियर बैठे हैं सूट बूट पहन के कॉन्फ्रेंस रूम में, हम उनको बोलते हैं सर या तो ज्वाइन कर दीजिए या 10 मिनट रुक जाइए. तो ये रिचुअल, सो देयर आर सम थिंग्स जो हमने सीखी. और बट अब मेरा सिस्टम एक है जो बहुत अच्छा चल रहा है मेरे से, कि मैं ना 3 चीजों पे एक टाइम पे फोकस करता हूँ और 3 डिफरेंट जैसे, और वो मेरे सामने रहती है ताकि मुझे याद रहे. एक ही किताब है जैसे इस महीने की है $1 मिलियन कंसल्टिंग, कि हाउ डू यू गेट कंसल्टिंग क्लाइंट्स व्हिच आर बिग क्लाइंट्स. सो सिर्फ जरूरी नहीं है एग्जीक्यूशन की ही बात करनी है, स्ट्रेटजी भी हो सकती है, तो उसको सीखने के लिए. दूसरा है हाउ टू सेल लाइक क्रेजी, व्हाट आर द फनल्स, फेसबुक एड फनल्स एंड एवरीथिंग दैट यू यूज. तो ये, और तीसरा है मेरा जो अभी का जो मेरा फोकस है वो है रॉबिन शर्मा का एवरीडे हीरो. हाउ सो मैं अपने सामने ये तीनों किताबें रखता हूँ. हाँ. और डिपेंडिंग ऑन मेरा क्या मन कर रहा है, इन्हीं में से पढ़ के इन्हीं में से नोट्स बनाता हूँ. मेरे सामने मेरी डिफरेंट डायरीज पड़ी होती है. इंटरनेट पे भी, अपने कंप्यूटर पे भी फोल्डर्स हैं, लेकिन यहाँ मेरे फोल्डर्स होते हैं न्यू आइडियाज की डायरी, टीम रिव्यू की डायरी, जो मैंने एक है जिसके सामने मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं आपसे सीखा है मैंने उसमें लिख रहा हूँ. So what happens with all of this is कि मेरे को जो चीजें मेरे को चाहिए वो मेरे सामने रहती है. फोकस इन्हीं तीनों चीजों पे रहता है. मैं किताबें ऑर्डर करता रहता हूँ, लेकिन मैं ऑर्डर करके उनको अमेज़न के डब्बों से खोलता भी नहीं हूँ. अच्छा. जब तक ये तीनों चीजें मैंने, एक तो इनको पढ़ूंगा, फिर इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा लोगों को, ताकि यूट्यूब पे रहेगा, लोगों को समझ, क्योंकि एक वीडियो बनाना, लोगों को समझाना और सिखाने का जो बिजनेस है बड़ा सेल्फिश बिजनेस है. क्योंकि जब आप किसी को सिखाते हो तो आपके अंदर और डीप में चले जाती है बात, तो आपका वो चीज और बैठ, फिर उसमें से पॉइंट्स निकाल के ऑफिस में डिस्कशन होती है. ऑफिस में एक बार में लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने किताब 2-2, 3-3 बार पढ़ी है, उनको आप उसमें से 10 पेज बता रहे हो, तो बार बार उसको मॉर्निंग मीटिंग में लाया जाता है कि ये वाला पॉइंट. फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी 1-2 पॉइंट पकड़ लेता है, हाँ ये ठीक है. जब उन्होंने पकड़ लिया, वो SOP में चला गया, तब मैं इस बुक को हटा के फिर दूसरी बुक लेके आता हूँ. सो ये एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है. और उसके बाद हम उन चीजों को बोलते हैं कि यार वो एलन वाइस ने वो वाली बात बोली थी, तुमने वो प्रोसेस है ना हमारा, हाँ है तो सही, हम यूज नहीं कर रहे, तो करो ना, उसको यूज करो. सो दुनिया भर के जो अमेजिंग लोगों ने जो चीजें बोली है, उनको हम अपनी छोटी सी कंपनी में कैसे लेके आए, वो हमारे, मैं कहता हूँ, मैं अपने ऑफिस में बहुत लोगों को बोला तुमको ये किताब पढ़नी चाहिए. कभी कभी तो मैं जोश में आके 10 किताबें ऑर्डर कर देता हूँ, सबके घर पे अमेज़न के एड्रेस भेज देता हूँ. लेकिन मुझे पता है आधे से ज्यादा लोगों ने खोलना भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी मोटिवेशन नहीं है. तो मैं उसमें से सारांश निकाल के फिर उसमें से डालने की कोशिश करता रहता हूँ. So reading is a very very powerful thing. Yes, that does not stop you. मैंने देखा है बुक्स का, you keep reading and sharing stories. Many people find a full stop कि वो चीज का सामने वाला यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है तो क्यों शेयर करें.
वीडियोस हो गए या बुक्स गिफ्ट करना, ये सब चीजें. बट नॉलेज शेयरिंग, आई रियलाइज विथ योर पोस्ट वीडियोस एंड ऑल दैट नॉलेज शेयरिंग इज समथिंग दैट यू डू वेरी जेनरसली, एंड that is one of the best thing I find in you. जी मैंने एक चीज देखी है कि मैं माय डैड इज 73 years old, आई एम 45. आज भी मुझे वो कुछ वही चीजें बता रहे हैं जो बचपन में बताते थे. तो मुझे लगता है कि वो रेपिटेशन की कितनी बड़ी पावर है. तो अगर Correct. कोई रुकता नहीं है, मैं क्यों रुकूं? पहली बात. दूसरी बात, मैंने मनीष एक चीज पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे. उन्होंने लिखा था कि एमेच्योर्स कॉल व्हेन यू रिपीट समथिंग बार 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 बार, तो एमेच्योर्स कॉल इट बोरिंग, Right. बट एक्सपर्ट्स कॉल इट मास्टरी. Correct. तो हम ये रिपीटेशन कर रहे हैं, आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए, मास्टरी हो रही है धीरे धीरे उसी सब बार बार. हमारा एक चीज और है, पैट डेविड, वैल्यूटेनमेंट, आई थिंक इंटरनेट का सबसे बेस्ट चैनल है, इससे बेटर चैनल बना ही नहीं है. Right. उसमें, एंड ही इज अ बिलियनर. वो ये चैनल के बाद क्यों करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन चैनल पे भी 3-4 मिलियन वो है उनके पास. बहुत अच्छे वीडियोस बनाते. तो उनको मैं मिला, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया. उन्होंने एक बात, बहुत सारी बातें बोली थी, उसमें से उन्होंने एक चीज बोली, you have to continue casting the vision in front of your company every week. Right. हम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, हमारा अगले महीने का क्या प्लान है. बार बार उनको सपना दिखाना, बार बार उनको दिखाना हम कहाँ जा रहे हैं. हम यहाँ पहुंच गए दिल्ली से फ्लाइट उड़ेगी 7:30 बजे, और अब यहाँ जाएंगे, फिर वहां से बादल देखेंगे, फिर वहां से वहां जाएंगे, फिर लैंड करेंगे, फिर गोवा पहुंचेंगे, गोवा में ये मौसम होगा, फिर हम लोग सब डांस करेंगे, फिर ये होगा. हर बार बताना, हर बार. वो कहता है, और वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी, उन्होंने बोला यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप कास्ट. कहते यू आर मतलब मैंने उसके बाद सोचा कि हमारा नाम होना चाहिए चीफ कास्टिंग ऑफिसर, विजन कास्टिंग. बार बताए जा रहे हो. फिर जब ये बात मेरे दिमाग में घुसनी शुरू करी, तो फिर जब आप कोई चीज देखते हो तो हर जगह से वही बातें सुनने होता है. मैंने देखा, मैं कौन सा राजू हिरानी या किसी बहुत बड़े मूवी डायरेक्टर का इंटरव्यू देख रहा था. कहते मैं 3 साल अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर मैंने काम करा होता है. उसके बाद जब हम हीरो हीरोइन के पास जाते हैं ना, हम उनको बार बार वो स्टोरी समझाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे है. वो ऊपर से दीपिका पादुकोण आ रही है ना, वो उसका इस तरीके से उसके बाल, नहीं बाल ऐसे नहीं जा रहे, इस तरफ से जा रहे हैं. उसको एग्जैक्टली पता है कि उसको क्या चाहिए. और वो कहानी, नहीं देखो तुम 1852 में हो, 1852 में ऐसा नहीं बांधते थे, ऐसे करते. दे आर सो क्लियर अबाउट वेयर दे वांट टू गो. तो वो बार बार पूरा 18वीं सदी का रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण से वो एक्टिंग करवा दी, उनको पुरानी दुनिया में ले जाके, और हम सबको यकीन भी दिलवा दिया कि वो लोग उसी जमाने के. करेक्ट. तो एक आदमी एक एक्टर को कहीं और दुनिया में ले जाके उनको रियल बना देता है, इसका मतलब उसको पता है उनको जाना किधर है. तो ये बात मेरे दिमाग में बार बार आती है कि मेरे को बार बार अपने आप को यकीन दिलवाना है और बताना है कि मेरे को जाना किधर है. फिर ही हम टीम को बार बार बता पाएंगे, उनको आपके कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस आएगा. One thing more I would want to know from you, I've learned कि आप थोड़ा डिस्टेंस से शायद काम करते हैं, right? You are in Canada presently? मैं पिछले 10 साल से ही बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर रहा हूँ. सो ये शुरू से ही मेरा ऐसे रहा है. तो आपके लिए दिल्ली में टीम मैनेज करना कितना इजी या कितना टफ रहता है? Any processes you follow to remain in constant touch with the team, maybe by morning meeting or WhatsApp groups? मॉर्निंग मीटिंग जरूर होती है, एंड एक वीकली हमारा कैचअप होता है, जिसमें जो सीनियर लोग होते हैं 6-7 लोग, मैं हर आदमी को उनके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, और वो पॉइंट्स लेके आने, और उस बेसिस पर एक वो होता है कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपने कहा, जो अच्छे लोग होते हैं उनको समझ आता है कि मुझे अपने लिए ही करना है, तो वो करके हो जाता है. बट डेली छोटी छोटी चीजें, OTP आप ही के पास आएगा, वो बैंक वाली चीजें आपके पास आएंगी, वो सब चीजें होती है. सो यू डू इट. मेरे क्या, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, तो मेरा सोने का टाइमिंग डिफरेंट होता है, कि मैं रात को 1 बजे तक फोन पे बात कर रहा हूँ, या मैं सुबह 6 बजे उठ के फोन पे बात कर रहा हूँ, वो वाली चीजें. लेकिन मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ बैक एंड फोर्थ ट्रैवल, तो मेरे को वो करने में ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब अब होती भी है तो कोई ऑप्शन नहीं है. क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे बड़े इन्फ्लुएंस है मेरे डैड. मैं उनको अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम लेके जाता हूँ ना मनीष, वो कहते हैं अच्छा सोल्यूशन अगर है आगे कीप मार्चिंग, सोल्यूशन नहीं है तो कीप मार्चिंग. कहते रुक तो वैसे भी नहीं सकते. सही बात. तो मैं उनसे पूछे बिना सोच लेता हूँ कि उनसे पूछूंगा तो वो यही बोलेंगे, यार अगर मैं उनके पास कोई भी दुखड़ा लेके जाऊँ, या यार मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, या हमारा ये कैश फ्लो में ये प्रॉब्लम आती है, वो कहते जो कर सकते हो तो ठीक करो, और नहीं कर सकते हो तो कीप मार्चिंग. मतलब उसमें क्या कर सकते हो. तो इसीलिए आई वुड नॉट से प्रॉब्लम आती है, बिकॉज दिस इंटरनेट मोगल्स इज, मेरे हिसाब से इंसान को कोई भी अच्छी
कंपनी अपनी आपकी कंपनी आपको नाम, काम और दाम देती है, आपकी बिल्कुल। आइडेंटिटी उससे जुड़ी होती है। आपको कोई भी रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, आप जाते हो तो आपका एक नाम होता है कि चलो कोई पान वाला है, कोई साइकिल पंचर की दुकान चला रहा है, कोई एजेंसी चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, सबको सोसाइटी में एक जगह मिली हुई है उनके काम की वजह से। Correct. तो उसमें उस सब चीजों के बीच में वो प्रॉब्लम छुप जाती है कि चलो ठीक है, यू हैव टू कीप मार्चिंग। और 10 साल पहले तो ये बहुत टफ डिसीजन रहा होगा, बिकॉज आपने शायद बताया 13-14 साल आपको हो गए कंपनी को, राइट? 13। और आप 10 years से आए, so your company would be 3 years young when you took this decision to totally shift to Canada. नहीं, मैंने ऐसा डिसीजन नहीं दिया अच्छा, कि टोटली शिफ्ट टू कनाडा। ये तो अभी कोविड के चक्कर में मैं काफी देर से नहीं आया, बट मैंने कोई डिसीजन नहीं दिया शिफ्ट करने का। आई हैव ऑलवेज बीन ट्रैवलिंग। ओके। तो ये मेरा आज तक कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं था कि हाँ चलो जी अब मैं कनाडा बैठूंगा या मैं लंदन में जाऊंगा या कहीं भी जाऊंगा। बस आई वाज ऑलवेज ट्रैवलिंग। कभी Okay. बॉम्बे बैठे हैं, कभी गोवा बैठे हैं, कभी कहीं। आई वाज ऑलवेज, सो आई डोंट नीड टू सिट इन द ऑफिस ऑल द टाइम। राइट। सो दैट इज ऑलवेज बीन देयर। अब आपने जैसे शुरू में बोला, उसका खामियाजा भी होता है और उसका फायदा भी होता है। हाँ। थोड़ा डिस्टेंस करते हो आप अपनी सिचुएशन को, तो यू आर एबल टू थिंक मच बेटर। एब्सोल्युटली, यस। आपकी टीम अगर आपको रोज ऑफिस में देखती है तो आपसे वही सवाल पूछेगी जो वो खुद सॉल्व कर सकती है, लेकिन Absolutely. आपको देख के आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा। तो आपकी टीम अपने आप सक्षम हो जाती है आपके बिना। यस। और कुछ गलतियां भी होती हैं। ऑफिस का कल्चर आपके सामने रहने से आपके कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल मींस के आप उसको अपने हिसाब से, जैसे आपने कहा, बैठो रिजॉल्व करो चीजें। वो कुछ Correct. चीजें दूर से बैठने से थोड़ा सा समय लग जाता है कभी कभी। बिल्कुल। बट माय डैड, अगेन मेरे डैड हमेशा कहते हैं तुम्हारी 5 एजेंसीज होती है 5 डिफरेंट जगहों पे, तो तुम कहाँ बैठते? कहीं भी नहीं बैठते, तुम कहीं और बैठते और तुम्हारी टीम्स तो हो जाता है। ऑसम। हो जाता है बिकॉज हमारा वो होटल बिजनेस भी है और वी आल्सो, सो इट्स नॉट उसको मैं चैलेंज नहीं समझता। चैलेंज ये है सबसे बड़ा, टू बी एबल टू गेट हाई पेइंग क्लाइंट्स विद लॉन्ग टर्म रिटेनर्स और Right. उनको फिर हर क्वार्टरली बढ़ाना। बिकॉज 4 क्वार्टर मैंने बढ़ाया तो एजेंसी रिटेनर शुड कीप गोइंग अप। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एजेंसी रिटेनर ऐसे हमारे साथ तो नहीं होता कि हर साल 1 साल हो गया तो जैसे इंक्रीमेंट होता है रिटेनर भी बढ़ जाए। वो तो ऐसे होता है कि आपके साथ 1 साल हो गया ना, तो हाँ. आपको 1 साल और दे रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट 10% कम कर दो। और एक और बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है 10% बोलने के लिए मैं जाऊं मैनेजर्स जीएम से बात करने, पर सर्विसेज क्या बढ़ा रहे हैं वो क्या बताऊं मैं, वो भी बाय डिफॉल्ट। दैट इज अ नेचुरल थिंग, राइट। तो सर्विसेज 25% की बढ़ने की बात होती है, तो आप कहते हो उसको वहीं रहने दो। तो ये वाली जो चीज है, जो काफी सारे क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे बोलता हूँ, मैंने कहा पार्टनर बोल देते हो आप, लेकिन पार्टनर पेपर पे नहीं दिखता, रिटेनर में नहीं दिखता कि हम आपके पार्टनर्स हैं, दिन रात खड़े हैं आपके साथ, ये वो। बट ये सबके साथ ट्रू नहीं है। देयर आर सम पीपल हु टोटली बिलीव, एंड दैट्स व्हाई हम लोग 13 साल से खड़े हैं। तो कुछ लोगों ने तो सपोर्ट किया ही है। सुपर। So मनीष, हमारा लास्ट सेक्शन होता है, लास्ट वी गॉट 3 minutes left, जिसमें यू आस्क मी एनी वन क्वेश्चन। तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं रोल, यू आस्क मी एनी वन क्वेश्चन एंड देन वी फिनिश। ओके, सो फर्स्ट तो मुझे डिस्टेंस का काफी टाइम से आपसे पूछना था। आई हैव बीन privileged to get to this particular show. Second, I think you also in between thought to expand beyond hotels. If yes, how was the experience and was that a wise decision? Sure, तो वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार नहीं, हमने पिछले 7-8 साल में कम से कम 4-5 बार कोशिश करी है। Okay. क्योंकि और ऐसा नहीं है कि ऐसा है, हमारे पास बड़े बड़े क्लाइंट्स भी आए दूसरे इंडस्ट्री से। मतलब नेचुरल है कि वो अगर कोई हॉस्पिटल आएगा या कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आएगी या होटल्स के अलावा कोई भी आएगा ना, इस ये बात की गारंटी है कि वो रिटेनर 4 गुना होगा मिनिमम 4 गुना होना है, वो तो डिफॉल्ट है। राइट। तो वो क्लाइंट्स आए और वो क्लाइंट्स हमारे साथ रुके भी, जब तक मेरी और मेरी 1-2 सीनियर लोगों की उस पर पूरी नजर थी। जब वो नजर हटी, देखिए कोई भी आदमी आपको 2-3-4 लाख रुपए दे रहा है तो उसको वो ज्यादा अटेंशन चाहिए। जब वो थोड़ी नजर हट, हम उसको सिस्टम में नहीं, हमारी ये थी कि हम उसको हमारी टीम के लिए, क्योंकि टीम का साइकिल था होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑल ऑफ दैट। तो टीम का जो लर्निंग साइकिल था वो सारा था ये प्रोसेस, होटल्स को कैसे ऑनबोर्ड करना है, रेस्टोरेंट को कैसे ऑनबोर्ड करना है। उनके लिए कोई नई चीज को ऑनबोर्ड करने में ही एक्सपीरियंस खराब हो जाता था कभी कभी। तो या तो आप एक अलग टीम बनाओ
राइट, और अगर आप अलग टीम बनाते हो, वो अलग टीम सिर्फ एक ही वर्टिकल के लिए, तो एक क्लाइंट के साथ नहीं चलेगा। यस, सिर्फ एक क्लाइंट, तो आपको एक फोकस रखना है कि मुझे इसी इंडस्ट्री के भी 2-3 क्लाइंट्स चाहिए, ताकि ये वाली टीम भी समझ जाए इस वाली बात को। बिल्कुल, उसमें हम ऑनेस्टली 2-3 बार गिरे, लेकिन मेरे हिसाब से 15 से 20% क्लाइंट्स, नॉट बिकॉज एक अलग इंडस्ट्री में जाने का कोई बहुत बड़ा वो है हमारे को, बट कुछ बड़े क्लाइंट्स अगर दूसरी इंडस्ट्री के आते हैं, तो वो एक वो आपको डिफरेंट तरीके से सोचने पे मजबूर करते हैं। यस, एक डिफरेंट तरीके से, आप ऐसे क्यों नहीं सोच, हम तो ऐसे और वो वाली बातें आप वापस अपनी एग्जिस्टिंग होटल लाइफ में ला सकते हो। करेक्ट, तो ये वाली जो चीज है ना, वो नहीं तो हम होटल्स में एक्सपर्ट बन जाते हैं इतने सालों से काम करके, तो सीखने, होटल्स हमको चैलेंज करते हैं, बट उतना बड़ा चैलेंज नहीं होता। बट इफ यू गो टू अनदर फील्ड, दे चैलेंज यू टू थिंक वेरी डिफरेंटली। ट्रू, ट्रू, वो चैलेंज जो है वो आई थिंक होना चाहिए, 10-15% वो थोड़ा बहुत पंगा लेना चाहिए। I think because we are into same industry, I'm able to mingle with your words. ऐसा लग नहीं रहा पहली बार detailed call हो रहा है. I Lot know. of things. Next and last thing, Abhijit, I would want to know. I have asked. I have tried to discuss about this thing quite a times, but how do you manage to take the time for PR for yourself? रोज 50 चीजें आती होगी, OTP आपने बताया, ऐसी 100 चीजें आती है। आज ये 4 जने लीव पे हैं और क्लाइंट मीटिंग है, कैसे जाए, कौन करे, क्लाइंट के डायरेक्ट कॉल्स भी आ जाते हैं कई बार। क्लाइंट, उन सबसे टाइम निकालना खुद के PR के लिए, हाउ डू यू मैनेज? सी, मेरा शौक है बातें करना, शुरू से था। I used to want it. I love talking on stage. ये मेरा शुरू से शौक था। इनफैक्ट मैं ये वाली जो opportunity, and now these are paid opportunities. I do 80% of my talks or anything. So what I realized was that मैंने शायद रॉबिन शर्मा से सीखा था, कहाँ से सीखा था मुझे याद नहीं, बट मेरा एक बैचिंग सिस्टम है। मंडे आज का दिन है, आज पूरा दिन, अभी सुबह हो रही है यहाँ 10:30 बजे, आज पूरा दिन मेरा कंटेंट है। आपके बाद एक और इंटरव्यू है, उसके बाद मैं 15 इंस्टाग्राम की रील बनाऊंगा। उसके बाद आई एम गोइंग टू क्रिएट 6 यूट्यूब वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। उसके बाद आई एम गोइंग टू क्रिएट वन वीडियो टॉपिक फॉर माय टीम, जो मेरी टीम को आफ्टरनून मीटिंग में दिखाया जाएगा, जो इस हफ्ते का हमारा वीडियो है। ऐसी चीजें आज, मतलब 6 घंटे। उसके बाद मेरा पॉडकास्ट है, जिसके मेरे को 4 एपिसोड रिकॉर्ड करने हैं, जो मैं अपने फोन पे रिकॉर्ड कर दूंगा। यहाँ ये सारा माइक वगैरह पड़ा है। तो आज 6 घंटे में सारा अपना कंटेंट रिकॉर्ड कर दूंगा, और 2-2:30 बज जाएंगे दोपहर के। और ये सारा कंटेंट अगले हफ्ते 10 दिन का टीम के पास चले जाएगा, वो एडिट वगैरह करके यूट्यूब पे इधर उधर सब चले जाएगा। सो आधा दिन निकालना होता है पूरे हफ्ते में। ज्यादा समय नहीं लगता। 5 to 6 hours में कंबाइन कर देते हैं। नॉट एवरीडे हो नहीं पाता। एवरीडे अगर ऐसा है कि मान लीजिए अगर मैं किसी पार्टी पे गया या मैं किसी इवेंट पे गया, तो मेरे को आप मिले और मेरे को लगा मैं आपसे कुछ सीख सकता हूँ, तो मैं तो उसी टाइम फोन निकाल के बोलता हूँ मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि नहीं, तो 5 मिनट आप कुछ बता दीजिए, फिर उस वीडियो को लेकिन मंडे को ही उस वीडियो में जाके उसमें उसको कंटेंट का वो होता है। सो टाइम, जैसे मैंने कहा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लगा नहीं कभी कि टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन मंडे के दिन, क्योंकि अभी क्या है कि मंडे नाइट हो रही है इंडिया में, अभी मंडे नाइट हो गई है, यहाँ मंडे मॉर्निंग है, तो अभी मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। 6 घंटे मैंने कंटेंट बनाना है। और जब मैं इंडिया में होता हूँ तो मैं इस चीज को थर्सडे ले लेता हूँ। मंडे ट्यूसडे हो गया काम, ऑफिस ठीक हो गया, थर्सडे थोड़ा लाइट हो रहा है, फ्राइडे हमारी क्लोजिंग मीटिंग होती है, तो थर्सडे के दिन क्रिएट कर दिया। तो एक दिन, आधा दिन, 2 घंटे, 1 घंटे से आप स्टार्ट कीजिए टू क्रिएट कंटेंट, एंड धीरे धीरे उसमें ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, दैट एक सेल्स साइकिल होती है, 2 से 3 घंटे आदमी समझता है, अच्छा आपने क्या किया, फिर आपकी टीम से बात करेंगे, फिर आप प्रपोजल। अगर वो सेल्स साइकिल मेरे वीडियोस देख के कम हो सकती है, तो और फिर मैं कंटेंट बनाता हूँ इंडस्ट्री के तीनों लोगों, मैं क्लाइंट्स के लिए भी बनाता हूँ, मैं अपने पार्टनर्स के लिए भी बनाता हूँ, और मैं अपने आगे वाली एजेंसीज के लिए, जैसे अभी हम ये बना रहे हैं। अब ये कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन ऐसा नहीं होता कि कोई आके सबको ले जाएगा आपका। कंपटीशन नहीं है, इनफैक्ट पार्टनरशिप्स बन जाती हैं। कितने सारे लोग हैं जिनको हम आउटसोर्स कर पाते हैं, या वेंडर बनाते हैं, या पार्टनर्स बना लेते हैं। तो अगर कोई बहुत सारे जूनियर्स हैं जो आज एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, 2 साल बाद कोई मेरे लिए कॉपी राइटिंग कर रहा होगा, किसी के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो एक इकोसिस्टम बन जाता है। सो वी थिंक ऑफ ऑल 3 पीपल एंड वी क्रिएट कंटेंट, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। फैंटास्टिक। सो दैट इज मोर ऑफ ये वो ऑटोमेटेड मोड पे चलता रहता है। हाँ, अब इसमें थी कि प्रॉब्लम आती है एडिटिंग और वो उसकी साउंड, उसका ये और वो, लेकिन अब मैंने उन सब चीजों को चेक करना बंद कर दिया। अब वो I've got a dedicated team which works only on
one account which is Ask Avi Arya. वो मेरा अकाउंट है, उसकी अलग टीम है. वो जैसे क्लाइंट, क्योंकि जब मैं शेयर करता था टीम, वो तो सबसे पहले सर क्लाइंट का काम आ रहा है तो अब भागो, वहीं भाग जाते थे सब. अब इसके लिए डेडिकेटेड टीम है और तभी चलता है. बिल्कुल, that I have also faced. फिर you yourself will have to prioritize clients work. हाँ, तो वही होता है, फिर वो चीज रह जाती है और फिर क्लाइंट्स को यू नो देन आई डोंट नो, आई वाज नॉट लाइकिंग इट. इन्वेस्टमेंट लगती है, यू नो, ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है. एंड लेकिन वो मैंने वो देखा कि मैंने उस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में काफी डिले किया, आधा अधूरा ये वो. लेकिन अब फुल फ्लेजेड टीम है. मेरी पॉडकास्ट टीम कंप्लीटली डिफरेंट है, वो बॉम्बे में बैठती है. मेरी यूट्यूब टीम कंप्लीटली डिफरेंट है, वो बैंगलोर में बैठती है. जो अच्छे अच्छे लोग जहां जहां मुझे को मिले, Remote, तो हमने वहां हायर करके बोला यू वर्क फॉर अस फ्रॉम देयर ओनली. okay, remote से आप comfortable रहते हैं hiring people from their own locations, not necessarily in Delhi office. We've got people in Canada, we've got people everywhere. देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आज मेरे को एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई मनीष. मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये कोविड ने मुझे सिखाया. मैंने कहा यार मैं कैसे सोच सकता हूँ कि दिल्ली में, या अगर आप, मेरा ऑफिस दिल्ली में है, तो बेस्ट टैलेंट दिल्ली में आएगा और वो भी मेरी ऑफिस में आएगा और मेरे साथ काम करेगा. बेस्ट टैलेंट तो शायद लंदन में बैठा है, कहीं बैठा है. अब मैं उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो उसके 3 घंटे ले सकता हूँ, 4 घंटे ले लूँ, किसी के 2. तो ऐसे मिक्स एंड मैच करके रिमोट, बिल्कुल 100%. आई गॉट, आई डोंट नो, वी गॉट अबाउट 30-40 मे बी 50 पीपल हु आर रिमोट, जिनको हम सैलरी देते हैं फुल टाइम, हाफ टाइम, व्हाटएवर, और जूम कॉल्स वगैरह पे मिलते हैं. यस, फ्रस्ट्रेटिंग होता है, कोई आया नहीं, किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया, कोई आधा अधूरा आया, किसी ने काम आधा किया 2 घंटे, वो सब चैलेंजेस तो चलते ही रहते हैं. बट आई थिंक वी गॉट बेटर टीम्स नाउ. हर महीने में समझ में आ जाता है, बिकॉज पीपल हु आर विनर्स, पीपल हु हैव गुड एटीट्यूड, अपने एम्प्लॉयर्स से ज्यादा वो खुद भी टेंस्ड रहते हैं फॉर गिविंग बेस्ट ऑफ द आउटपुट, क्योंकि उनके लिए उनकी खुद की ब्रांड नेम भी बहुत मैटर करता है. दैट अगर ने के बाद सैलरी मिल रही है तो मैंने क्या वैल्यू एड ऑन की है. पहले मुझे लगता है सिर्फ एम्प्लॉयर्स थॉट रहता है, बट रिसेंटली while working with some really good people, I felt कि आपसे ज्यादा उनको भी टेंशन रहती है. आप 2 दिन काम मत दो, they'll be worried कि what is my next task. They'll take proper feedback from you. Within first 30 days you can realize this is a winner candidate or this is an average candidate. बिल्कुल ठीक बात है. ये आपने बहुत अच्छी बात बोली. जो कैंडिडेट हु कम्स एंड आस्क्स यू कि मैंने आपको एक ईमेल भेजी थी, आपने वो देखा, मुझे बताओ तो सही कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो बहुत वहीं बात मजा आना शुरू हो जाता है कि हाँ, इनको चाहिए और इनको कुछ चाहिए लाइफ में, और आप देने को तैयार हो. यू वांट, आई मीन एवरी एजेंसी वांट्स टू गिव, और लो यार, हमको क्या प्रॉब्लम है, व्हाटएवर यू वांट. सो वी ऑलवेज टेल आवर पीपल देयर इज नो लिमिट ऑफ ग्रोथ. क्या लिमिट है? आप बताओ, आप क्या देना चाहते हो, आपका लाइफ का क्या प्लान है. तो मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाना है, एजेंसी में 5 लाख नहीं कमा सकते. अच्छा, मुझे बताओ, आप, हमारे क्लाइंट्स को ये चाहिए, इतना रेवेन्यू चाहिए, वो उस हिसाब से हमारे को ग्रोथ देंगे, आप उसमें हमारे भागीदार बन जाओ. So, अब 1 मिनट में नहीं आप सीखोगे, शायद आपको 1 साल लगेगा. So invest time to get into that and people make that those kind of things. So I think, और मुझे कोविड में बहुत कुछ गलत हुआ बहुत सारे लोगों के साथ. मेरे को भी 2 बार हो गया शायद कोविड. 1 बार तो टेस्ट कराया, 1 बार नहीं कराया बहुत. बट मैंने कोविड में एक चीज देखी कि मेरे को लगा कि लोगों को जिंदगी, कुछ लोगों को एक गरज आ गया अंदर से कि कुछ करना है यार, और वो लोगों को ढूंढने निकले. अब हम कौन लोग हैं जिनको हो गया कि नहीं यार, लाइफ एक बार तो चली गई थी ना, एक बार तो हम सब खत्म ही हो गए थे. अब तो बोनस है, बिल्कुल. अब तो फ्रंट फुट पे आके खेलो, अब क्या डरना है. एक बार तो आउट थे पूरे, अब तो ये तो रेफरी ने एक्स्ट्रा दे दिया. वेरी नाइस, सीरियसली. तो अब तो नहीं डर के खेलना चाहिए. अब मतलब हाँ, वो कैश फ्लो वगैरह वो सब चीजों से डरो कि अब वो गलतियां मत करो. बट व्हेन इट कम्स, बड़ा क्लाइंट है, बड़ा पिच करो, डबल चार्ज करो, डबल रिटेनर मांगो, 2 की जगह 4, क्या होगा? ना कह देगा ना, तो है ही. What's the problem? Get the best people, throw a bigger vision. What will happen? So उस तरीके से मेरा डर काफी खत्म हो गया, बिकॉज कोविड ने 2 साल डरा के कब खत्म हो जाएगा, कोई मर जाएगा, किसी का ये हो जाएगा, वो करते करते ये आ गया कि अब सब बोनस है. Fantastic, so true. Done. Great. Thank you Manish, thank you very much for your time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. When I'm coming to Delhi in the next few weeks, फिर आके आपसे जरूर मिलूंगा. Well, I would even love to invite you to Indore sometime. आइए, 100%. खाना खिलाएंगे, ऑफिस दिखाएंगे. It will be a very very big privilege for us.
डन। ऑफिस तो आपका जरूर देखूंगा, मैंने बहुत अच्छी तरह का वीडियो पे मेरे को, और इंदौर के खाने के बारे में भी मैंने बहुत सुना है। पहले मैं सयाजी होटल आता था तो उनका मैंने हॉस्पिटैलिटी एक बार देखी थी, लेकिन आपसे जरूर मिलेंगे। सयाजी के जस्ट पीछे ऑफिस है, विद इन 100 meters आई गेस। ओके डन, वो तो मुझे लोकेशन पता है। परफेक्ट, थैंक यू। awesome. Thank you. So, ladies and gentlemen, boys and girls, that was Manish Vaswani with us. Great agency owner. 9 years to be able to run a business from scratch is not easy. बहुत सारे challenges आते हैं, people management, cash flow management, team management, बहुत सारी चीजें होती है, बट उनको मैनेज करके, bootstrap करके, अपना खुद का ऑफिस खरीद के बना के रखना, और इतना पॉजिटिव स्माइल रखना, रात को 11 बजे हमारे को अपने इंटरव्यू देना, I think that was a great human being and a great man. And I hope you like the journey of Manish Vaswani as an agency owner. हम Monday एक agency series चलाते हैं when we call agency owners from all over the world, so that we learn, you learn, and all of us don't make the same mistakes that the collective is teaching us not to make. एक ecosystem है जहाँ कुछ गलतियाँ हो रही हैं, और जब आके उस गलतियों के बारे में हमें सिखाया जा रहा है, तो why not note down what not to do, what to do, what not to do, what to do, and that becomes your Bible Gita to be able to run your own agency. That is the aim of this show. I hope you're enjoying this show series. पूरा साल चलेगा और आप लोगों को बहुत सारे एजेंसी ओनर से मिल पाएंगे. Thank you very much for watching. कमेंट करके मुझे जरूर बताना, अगर कोई ऐसे एजेंसी ओनर है जिसको मैं नहीं ला पाया हूँ या मैं अभी तक नहीं सोचा है, उनके बारे में जरूर बताइए, and we'll come and get them for you on this show. Thank you very much. My name is Abhi Arya, signing off for now.